ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने, इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने पढ़ा था the entire process of what excretion is and what are the excretory products. So the major excretory product which is there with us is basically the nitrogenous waste. Okay, so that is one which is synthesized or formed in the liver and then released out through the kidneys. Okay, now nitrogenous waste तीन होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला आता है that is अमोनिया, उसके बाद आता है यूरिया, और उसके बाद आता है यूरिक एसिड. Okay, now on the basis of the release of such nitrogenous waste, we have different modes of excretion. So based on these three nitrogenous waste, ठीक है. So the ammonia release होता है by the mode of excretion known as ammonotelism. Okay, and ammonia will be called as ammonotelic, and the process is known as ammonotelism. Urea will be released by the mechanism known as ureotelism, and naturally uric acid will be released by that mechanism known as uricotelism. Correct. Okay, so we have ammonotelism, ureotelism and uricotelism. These are the three modes or methods of excretion. जिससे क्या क्या एक्सक्रीट होगा? जिससे एक्सक्रीट होगा अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड इन कंपैरेटिव मैनर कि ये मैकेनिज्म्स होते क्या है. ओके, चल, द फर्स्ट वन दैट इज अमोनोटेलिज्म. Now what is ammonotelism? Excretion from body or liver? No, this is basically the release of these substances na from the body. गौरव, लीवर में बन गया ना अमोनिया. या चलो संजीवनी यहीं से लिखना चालू करो. अभी कंपैरिजन में यहीं से लिखना चालू करो. डोंट राइट एनीथिंग रिलेटेड टू लास्ट स्लाइड. ओके, नाउ अमोनोटेलिज्म में देयर विल बी एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, यूरियोटेलिज्म में देयर इज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, एंड यूरिकोटेलिज्म में देयर विल बी एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. Okay, so the organism which is going to release ammonia, those organism will be known as ammonotelic organism. Organism releasing urea will be called as ureotelic, and organism releasing uric acid is known as uricotelic. Okay, so we have ammonotelic, ureotelic and uricotelic type of organisms. Okay, next. Now where exactly ammonia is formed? तो ये हम लोगों ने last time पढ़ा था, last lecture में. It is formed by oxidative deamination in the liver. Okay, so the process is known as oxidative deamination of amino acid. Urea is formed by ornithine cycle or urea cycle in the liver, जो बनता है अमोनिया से. ठीक है, which will be formed from the ammonia, and uric acid will be formed by ionocyanic pathway. From where? From कहां से बनता है? जैसे ये अमाइनो एसिड से बनेगा, दिस विल बी यूरिया साइकिल ऑफ से अमोनिया NH3. वैसा आयोनोसाइनिक पाथवे किससे होगा? न्यूक्लिक एसिड, pyrins and pyrimidines. Yes, nucleic acids, that is purines and pyrimidine. Okay, nucleic acids, तो इससे ये बनेगा. राइट, नेक्स्ट. पहले ये कंपैरिजन देख लेते हैं, उसके बाद आप लिखना. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी जैसे मैंने बताया कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. Now the amount of water will be required now, because these molecules should get dissolved in the water so that they will be released out from the body. So to expel one gram or each gram of ammonia, we require 300 to 500 ml of water. ठीक है, so that is why it is considered as highly toxic. Whereas to release 1 gram of urea, we require approximately 50 ml of water, and to release 1 gram of uric acid, we require approximately 10 ml of water. So uric acid is considered as least toxic, and most toxic is considered as ammonia. So ammonia is highly toxic, urea is less toxic, and uric acid is least toxic. Right, so this is the comparison. Now during ammonotelism, the energy is needed in a very little amount.
ठीक है. फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया द एनर्जी रिक्वायर्ड इज एक्सट्रीमली लेस. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. Whereas here the energy required for formation of urea is going to be moderate, and here in uric acid energy required is very high. High amount of ATP will be required for this entire mechanism. Okay, so that is how uric acid can be understood. And then कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम लोगों को देखना है कि अमोनिया कौन रिलीज करता है, यूरिया कौन रिलीज करता है, यूरिक एसिड कौन रिलीज करता है. सो हियर एक्सक्रीशन ऑफ द अमोनिया विल बी द ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ कोर्स दिस. ये ठीक है, दिस इज फाइन. ओके, सेम था इसके लिए. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? अमोनिया विल बी रिलीज्ड बाय ऑल एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, जो पानी में रहने वाले थे वो. देन बोनी फिश इन केस ऑफ फ्रेश वाटर, एंड लार्वे ऑफ द इंसेक्ट्स एंड एम्फिबियंस, दैट इज टैडपोल. So they are all known to release ammonia, and of course via skin, gills and kidneys of certain organisms, all these organisms. ठीक है. So either it will be released through the skin or through the gills or through the kidneys. जैसे amphibians के tadpole will release it through the skin. Fish or bony fish and aquatic invertebrates will release it through the gills. इस तरीके से होता है. ठीक है. So this is how ammonia will be released. यूरिया के लिए कौन सा एग्जांपल आता है? सो ऑल द मराइन फिशेस, शार्क एंड रेज, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज, स्टिंगरेज वगैरह वगैरह, तो वो होते हैं. एडल्ट एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग एंड टोड, मतलब एम्फीबियंस इन अ टैडपोल स्टेज विल रिलीज अमोनिया बिकॉज टैडपोल्स आर फाउंड ओनली इन द वाटर, सबमर्ज्ड इन द वाटर. ठीक है, बिकॉज दे हैव द गिल्स. Whereas urea will be released at the time when the frog becomes adult. So adult amphibians में मिलेगा. Aquatic reptiles like for example turtle, alligator will also release urea, and almost all the mammals. So all the mammals are known to release nitrogenous waste in the form of urea. तो हमारे यूरिन से भी क्या रिलीज होता है, और रादर हमारे ब्लड में भी रिलीज होता है यूरिया, which is released out through the urine. यूरिकोटेलिक कौन सा होता है? द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स एंड द लैंड रेप्टाइल्स एंड द लैंड स्नेल्स. ठीक है. सो दीज आर ऑल नोन टू रिलीज यूरिक एसिड. ठीक है. दिस इज ऑल एडवांटेजियस इन द डेजर्ट एनिमल्स. क्योंकि क्या होता है, द एनिमल विच रिलीजेस यूरिक एसिड ना, इनके यूरिन में देयर इज लेस अमाउंट ऑफ यूरिन वाटर. सो द अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज्ड हियर इज वेरी लेस इन केस ऑफ यूरिकोटेलिज्म. ओके, क्योंकि कितना वाटर लगता है? 1 gram ऑफ यूरिक एसिड को डिसॉल्व करने के रिक्वायर्स ओनली 10 ml ऑफ वाटर ना. सो द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज रिलीज्ड इन द यूरिकोटेलिक इज वेरी लेस. दैट इज व्हाई इट इज एडवांटेजियस इन केस ऑफ डेजर्ट एनिमल्स. ठीक है. सो डेजर्ट एनिमल्स में प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड विल बी कंपैरेटिवली मोर टू प्रिवेंट द लॉस. ओके, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, राइट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है. कॉन्सेप्चुअल कम है, इसके लिए थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ाया. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द डिफरेंस, यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है. तो ये पूरा डिफरेंस यहाँ पे ये स्लाइड में दिया हुआ है. जस्ट कॉपी दिस डाउन. होने के बाद मुझे बोल दो. पूजा, एक्सक्यूज, पूजा मैडम आइए क्लास में.
होने के बाद प्लीज लेट मी नो वंस यू आर डन. Done, sir. डन. चलो Yes, ये sir. एग्जांपल लिख लो. नो, अरे यार, नो 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 आ गया, देखो कितना सारा. हाँ ठीक है ठीक है, आ गया वापस. यस यस, हो गया. Yes, sir. अरे कितने लोगों का नो, कितने लोगों का यस. हाँ वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में करो. चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बचाओ बाद में लिखना. एग्जाम्पल लिख लो, अदरवाइज थोड़ा जगह छोड़ दो और लिखो फिर अभी. फिनिश्ड. Yes, sir. हाँ ठीक है लिखो, आई एम वेटिंग. Shall we? चल आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं और कुछ पार्ट्स. नाउ as I said, no, uric acid will be released in the humans as well, right? Now what happens if there is excess of uric acid?
अगर ह्यूमन बॉडी में इफ देयर इज एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड देन इट स्टार्ट्स गेटिंग डिपॉजिटेड इन द जॉइंट्स ऑफ द बोन्स, स्पेशली द कंपैरेटिवली बिगर जॉइंट्स लाइक फॉर एग्जांपल ग्रेट टो एंड थंब, ठीक है, एंड दिस विल कॉज अ कंडीशन, इसकी वजह से कंडीशन आता है, दैट कंडीशन इज नोन एज द गाउट। एज यू कैन सी हियर, ये जो ग्रेट टो है यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, सो डिपोजिशन कैन टेक प्लेस इन द थंब एज वेल, सो दिस इज नोन एज, एक ही जॉइंट को तो भी अफेक्ट होता है, सो दैट इज व्हाई दिस कंडीशन इज नोन एज मोनो आर्टिकुलर, ठीक है। मोनो आर्टिकुलर का मतलब क्या आता है, ओनली वन जॉइंट विल बी अफेक्टेड, ठीक है, सो द कंडीशन इज नोन एज द गाउट बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड। समझ में आया सबको ये? तो ये ह्यूमन बींग्स में कंडीशन होता है। सर ये ही आपने कल बोला था, ये सेम सेम, और यहाँ पे अभी पिक्चर दिख रहा है आपको, सो इट्स अ मोनो आर्टिकुलर कंडीशन। मोनो आर्टिकुलर का मीनिंग आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन जॉइंट। इसको मेडिसिन है इसके लिए, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड। सर रिपीट करो ना। अच्छा, ये अथर्व, बेसिकली दिस इज अ कंडीशन फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग्स जहां पे एक्सेस यूरिक एसिड विल स्टार्ट गेटिंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म, and if the excess uric acid is released then it will start getting deposited in the joints of the bones. Yes, it's a initial beginning of the arthritis you can say, ठीक है, like arthritis only, लेकिन arthritis is polyarticular, मतलब multiple joints are involved. Here only one joint is involved, इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं मोनो। And it is not कुछ नहीं। मिनल घर पे बैठ के किसी को बुला रही है, सब यहाँ पे आवाज आ रही है। चलो, so basically uric acid will be released or deposited and that will lead to pain। तो यहाँ पे पेन होगा, रेडनेस होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट जिसको बोलते हैं ना, स्वेलिंग आएगा, पेन आएगा, movements will be hampered and of course there will be redness। तो ये सब कंप्लेंट्स आएंगे। So there is no cure as such, क्योर नहीं कर सकते हम लोग इसको, but you can definitely recover by controlling the uric acid। So medicines देने पड़ते हैं, मेडिसिन से आपको यूरिक एसिड कंट्रोल करना पड़ेगा। नो सर्जरी इज पॉसिबल इन दिस केस गौरव, ओके, सर्जरी आप कर नहीं सकते। सर्जरी क्या करोगे आप, सर्जरी करके ऐसे निकालते बैठोगे तो वो पेशेंट परेशान हो जाएगा, राइट, सो सर्जरी नहीं होगा। लेकिन यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन होते हैं, so that you know amount of uric acid in the blood will reduce, it will be controlled, right, so ये हम लोग करते हैं, right, so this is a condition known as gout। it's a type of arthritis, या गाउटी आर्थराइटिस ऐसा उसको बोलते हैं हम लोग, लेकिन आर्थराइटिस इज पॉलीआर्टिकुलर, गाउट इज मोनोआर्टिकुलर, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। हाँ करेक्ट इशिता, क्योर नहीं होता है बेटा, रिकवर होता है ये, इट कैन बी रिकवर्ड, पेशेंट विल लीड अ नॉर्मल लाइफ, लेकिन थोड़ा सा डाइटरी चेंजेस आ गए या थोड़ा सा कुछ कॉज ये हो गया, ट्रिगर हो गया, तो अगेन द सेम कंप्लेंट विल कम, ठीक है। चलो, अदर देन दिस यानी यूरिकोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, अमोनोटेलिज्म के अलावा वी हैव, नहीं कौन से भी जॉइंट में नहीं होता है लोहिता, दिस विल टेक प्लेस ओनली इन जनरली थंब और ग्रेट टो में होता है, दैट इज कॉमनेस्ट। कभी कभी नी जॉइंट भी अफेक्ट होता है या फिर एंकल भी अफेक्ट होता है, बट रेयर है। कॉमन इज ग्रेट टो एंड थंब, ओके। Now, other than uriotelism, uricotelism, and ammonotelism, we have another. Ammonia will not be excreted in the humans, Vaishnavi. कल मैंने बताया आपको, ammonia will be excreted in the form of urea in the humans, ठीक है, तो वैसा नहीं होगा ये। Okay, just give me a minute. चलो, नाउ लास्ट स्लाइड कौन सा चाहिए आलिया? दिस वन? यस, बाकी कहाँ जॉइंट्स होते हैं, यानी बाकी के तो इंटरनल जॉइंट्स अफेक्ट नहीं होंगे संजीवनी।
Okay, other modes of excretion other than ammonotelism, ureotelism, and uricotelism, we have one more called as guanotelism. Okay, जहां पे there will be excretion of guanine. Okay, and the organisms are known as guanotelic. जैसे for example released in penguin. Okay, या फिर arachnids में release होता है जैसे spiders and scorpions. So they are known to release directly guanine. जैसे नाइट्रोजनस ये होता है ना नाइट्रोजन बेसिस, तो उसमें से वन ऑफ दिस बेस इज नोन एज ग्वानिन, सो दैट विल बी रिलीज्ड. Ammonia is released as urea, as you said. So ammonia is present in our body, so to some extent, yes, but it is in the liver, so it won't be released in the blood. Anushka, okay? इसके लिए हम लोगों को तकलीफ नहीं होता, अदरवाइज तकलीफ होना चालू हो जाएगा. So these are the examples of guanotelic animal. Okay. अच्छा, इसमें ना और एक आता है अदर देन दिस, मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं. देयर विल बी रिलीज ऑफ क्रिएटिनिन आल्सो. ठीक है, दिस इज सीन इन ह्यूमंस अदर देन the uric acid and urea and uric acid. Creatinine will also be released, and creatinine is released in the urine as a part of destruction of muscle proteins. ओके, मसल प्रोटीन के डिस्ट्रक्शन से क्रिएटिनिन रिलीज होता है हमारे बॉडी से बाहर. ओके, सीरम क्रिएटिनिन बोलते हैं हम लोग इसको. सीरम क्रिएटिनिन लेवल शुड ऑलवेज बी नॉर्मल. इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो गया देन चांसेस, इनफैक्ट हाई क्रिएटिनिन इन आवर बॉडी इज अ साइन ऑफ किडनी फेलियर. ओके, सो दिस इज अनदर एक्सक्रीटरी वेस्ट व्हिच इज रिलीज्ड आउट. समझ में आ रहा है? Okay, so serum creatinine other than urea, uric acid, serum creatinine will also be released out from the body, and it is released out as a part of destruction, muscle protein destruction. The destruction of the muscle protein will release this. समझ में आ रहा है सबको ये? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये भी कहीं तो भी ये इंफॉर्मेशन कहीं तो भी लिख के रखो. ठीक है, चल. Now we are going to start with the human excretory system. Modes of excretion हमारे सारे हो गए. अभी human excretory system थोड़ा सा पढ़ना चालू कर देते हैं, and then we will try to understand each and every organ or structure one by one. एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. Okay? ठीक है, चलो. Now human excretory system का एक आइडिया आप लोगों को सबको है. सबको है. It has major 4 organs. कौन कौन सा? सबसे पहला, the first organ which we have here is the pair of kidneys, right? Second structure which we have is the pair of ureters, जो येलो कलर का दिख रहा है. Then we have single urinary bladder which is present centrally, so a median urinary bladder, and single urinary bladder continues with the single urethra which is again median tube called as urethra. So ऐसे ये structures रहते हैं, तो 4 major structures से ये पूरा system बनता है. Right, there is an aorta which is divided to give rise to the renal artery, and renal artery will give blood supply to the kidney. So renal artery will take the blood inside oxygenated. Deoxygenated blood will be carried through the renal vein, and renal vein is going to join to the inferior vena cava. तो ये पूरा हमारा एक टिपिकल एक्सक्रीटरी सिस्टम है. ओके, तो ये भी थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो हम लोगों को ना एक एक करके पढ़ना है, वन बाय वन वी नीड टू स्टडी ऑल दिस सिस्टम. एक मिनट स्टूडेंट्स. सर ये डायग्राम ड्रॉ करनी है. हाँ, ये ड्रॉ करके रखो. पेंसिल से एक लाइन डायग्राम करो ड्रॉ प्लीज. मेडियन मतलब एग्जैक्टली इन द सेंटर, हमारे बॉडी का सेंट्रल एक्सिस, इसके लिए मेडियन बोला गया है.
हो गया? नो सर। हेलो ना, Yes. अरे फटाफट लाइन पेन से नहीं निकालेगा, पहले बोल के रखता हूँ, पेन से निकालना तो मार खाओगे तुम लोग, सबके घर पे आके मारूंगा मैं। फिनिश्ड? हाँ, अमन डायग्राम निकाल तू पहले। सर हाँ, रेनल आर्टरी से फिर से बोलोगे क्या सर? मुझे लिखना है। अरे renal artery basically is the one which is formed by aorta, through aorta. So aorta branch out to form renal artery which enters inside the kidney to give blood supply. So it carries oxygenated blood in the kidneys. Then the deoxygenated blood will be carried through renal vein, which is going to join to the inferior vena cava. ठीक है? ओके सर। हो गया होगा तो बोलो फटाफट भाई लोग और Done. की बहन लोग। Sir, done. सर डन डन? सर। ओके चलो फाइन। तो अभी ना हम लोगों को ये सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने ऑफ कोर्स वन बाय वन, बट बिफोर वी स्टार्ट लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द पोजीशन। ठीक है, किडनीज क्या होते हैं, उनका एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, उनका पोजीशन क्या है, वो सब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। Now, where kidneys are present? Are they present in the thoracic cavity? Obviously, no. So they are present in the abdominal cavity. Very good, Ishita. लेकिन पेन यूज नहीं करना ड्राइंग के लिए, you have to use pencil. Okay. So they are present in the abdominal cavity, and they are all attached to the posterior muscles, posterior body wall. हमारे बॉडी का जो बैक रीजन होता है ना, we call that as posterior body wall. So there the kidneys will be completely attached. So where they are present? They are present in the abdominal cavity attached to the posterior body wall. So that is the exact position of the kidney. लेकिन अभी भी हम लोगों को exact position पता नहीं चला है। अभी हम लोगों को ये पता चला है कि abdominal cavity में होता है, लेकिन कहाँ होता है? Whether it is present near the stomach, whether it is present more closer to the pelvic cavity, कहाँ पे रहता है? So let us try and understand that also. Now, they are basically dark red and bean shaped structures जो कहां से किधर एरिया ऑक्यूपाई करते हैं. सो दे आर प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में रहता है. सो वर्टिब्रल कॉलम एग्जैक्टली सेंटर में है. सो वन किडनी इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, अनदर किडनी इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड. सो इट इज प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. Okay, and they are protected mainly by the last two ribs. Which are those? That is rib number 11 and 12. So it is protected by 11th and 12th pair of ribs, जो सबसे आखिरी में होता है. ठीक है, they are called as the floating ribs because they are connected from behind to the thoracic vertebra, and in front they are floating. So naturally they are protected from behind by the 11th and 12th rib. Right? Now another most important, as I said, the exact position अपने को पता होना चाहिए. So एक reference लिया जाता है. So here we have taken the reference of the vertebral column. So कहां से कहां extend होता है? So it extends from the 12th thoracic vertebra till the 3rd lumbar vertebra. Okay, I hope everyone knows the vertebra and vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम के ये सारे वर्टिब्रास होते हैं. सो जैसे फॉर एग्जांपल सर्वाइकल वर्टिब्रा जो नेक रीजन में होता है, ये वाले रीजन में. सो दिस नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रास इज 7. फिर थोरैसिक वर्टिब्रा होता है which is in the back region, upper back region. The number of these thoracic vertebrae is 12. फिर आता है यहां से, ये पूरा थोरैसिक वर्टिब्रा है. फिर नीचे आता है लंबार वर्टिब्रा जो लोअर बैक रीजन का आता है, जिसका नंबर आता है 5.
5 लंबार वर्टिब्रा, फिर उसके बाद एक बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर आता है फ्लैप लाइक. सो दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द सैक्रम विच इज 1. और एक होता है टेलबोन कॉक्सीजियल वर्टिब्रा, CO1 कॉक्सीजियल वर्टिब्रा, तो वो एक होता है. तो किडनीज का एग्जैक्ट एक्सटेंशन कहां से होता है? सो इट स्टार्ट्स एट द 12th लेवल ऑफ 12th thoracic vertebras and ends at the level of 3rd lumbar vertebra. So that is the reference of the vertebra. Okay, for us to know the exact position कि कहां पे ये abdominal cavity में होता है. सबको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, or sir. good. ठीक है. So this is how the extension will be seen. ये लिखा सबने? नहीं लिखा? लिखा सर. पूरा लिख लिया? No, sir. तो क्या कर रहे हैं? मेरा मुंह मत देखो ना. ये हो गया सर, अगली वाली हेलो. स्लाइड. हाँ, ये देखो. पहला वाला सी क्या था? मतलब किधर सी? सी किधर है भाई? हाँ, वर्टिब्रल कॉलम का सी इज सर्वाइकल नेक रीजन. ये लिखो पहले, डार्क रेड बीन शेप्ड. डन. Yes, sir. S is sacral, sacrum. Finished? Yes, sir. Okay, now further if we have to understand the position further, अभी जैसे references हम लोग ले रहे, तो हम लोगों ने reference किसका लिया? We have taken the reference of the vertebral column to understand. So यहाँ पे somewhere here we have the 12th vertebra of the thoracic region, and somewhere here we have the 3rd vertebra of the lumbar region. तो exact यहाँ पे, so 12, फिर उसके बाद आता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वर्टिब्रा. तो ये थर्ड वर्टिब्रा यहाँ पे खत्म हो जाता है. सो देयर द किडनीज विल एंड. नाउ फर्दर पोजीशन में इफ यू ऑब्जर्व, द राइट किडनी विल बी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी. बराबर है? राइट किडनी का पोजीशन देखोगे ना, तो देखो लेफ्ट किडनी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लग रहा है और राइट किडनी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लग रहा है. ओके, सो एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. Okay, so it is basically right kidney is slightly lower than the left kidney because, yes, correct Aman, because of the presence of the liver. यहाँ पे एक बड़ा सा organ होता है called as liver, right? Because of the liver, it is pushed down. ठीक है? Whereas if you observe the left kidney, तो left kidney is slightly behind than the right kidney. मतलब लेफ्ट किडनी थोड़ा सा पीछे है, राइट किडनी थोड़ा सा आगे की तरफ है. तो ये पोजीशन क्यों आता है? व्हाई लेफ्ट किडनी इज पुश्ड बिहाइंड? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टमक. सो स्टमक विल पुश दिस लेफ्ट किडनी स्लाइटली बिहाइंड, पोस्टीरियरली, थोड़ा सा पीछे उसको पुश कर देगा. राइट? So this is the exact position. So position में हम लोग क्या-क्या references ले सकते हैं? We can take the reference of the vertebra. So it is basically present in the abdominal cavity, protected from behind by two ribs, the last two pairs of ribs, that is 11th and 12th pair of rib. It will extend from 12th thoracic vertebra till the 3rd lumbar vertebra.
Now, if you observe the position, so right kidney is lower than the left kidney because of the presence of liver, and left kidney is behind than the right kidney because of the presence of stomach on the left side. Okay, कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? ये वाला? ठीक है, fine. Now, the length of the kidney is, this is average length of the kidney, which is 10 centimeters. Okay, then the width of the kidney is going to be 5 centimeters, and the thickness of the kidney is going to be 4 centimeters. So it is 10 by 5 by 4. तो एक छोटा सा organ है, very small organ. ठीक है, जिसका लेंथ कितना रहेगा? 10 सेंटीमीटर, जिसका विड्थ कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर, जिसका थिकनेस कितना रहेगा? दैट इज 4 सेंटीमीटर. Okay, so this is the standard measurement for the human being, human kidney, average standard measurement. प्लस माइनस हियर एंड देयर चलता है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं हो जाए. किडनी बड़ा कब होता है? व्हेन देयर इज स्वेलिंग. ओके, हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं उसको. तो हाइड्रोनेफ्रोसिस में किडनी का साइज बढ़ना चालू हो जाएगा. डन. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए वैष्णवी? हेलो, डू यू नीड एनी लास्ट स्लाइड वैष्णवी? हो गया ये? अच्छा, बिफोर दिस ये डन. विड्थ एंड थिकनेस. विड्थ इज दिस, ये वाला विड्थ है. ओके, एंड थिकनेस इज कितना थिक है ना, तो वो ऐसा आएगा. यानी 3 डायमेंशन अगर आप इमेजिन करोगे तो ऐसा आएगा ना. ओके सर, वो सर, आर बोथ किडनीज सेम इन साइज? यस, ऑफ कोर्स बोथ द किडनीज आर सेम इन साइज, बट पोजीशन इज लिटिल डिफरेंट. ओके, डन. चलो, ये तो हो गया मेजरमेंट ऑफ द किडनी. व्हाट इज द वेट ऑफ द किडनी? तो फीमेल में अगेन वेट ऑफ द किडनी स्लाइटली लेस, सो इट इज 135 grams, and in case of males it's going to be 150 grams. Okay, so the weight of the kidney in females is 15 grams less than the males. ठीक है, so that is the weight. फीमेल में 135 grams plus minus here and there, मेल में it's going to be 150 grams. थोड़ा सा रेफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं. नाउ किडनीज अगर आप देखोगे तो इनर इनसाइड, अंदर से अगर आप देखोगे तो किडनी विल शो दिस इनर कॉन्केव मार्जिन. अंदर से ऐसा एक कॉन्केव मार्जिन दिखता है. सो दिस मार्जिन इज नोन एज द हाइलस. इसको हम लोग बोलते हैं हाइलस. And this hilus is very important because it helps to carry the blood vessels, the nerves, the ureter enters and leaves through the hilus. So renal artery is entering in, renal vein is coming out, the nerves are entering in through the hilus, and ureter is coming out from the hilus. Okay, so that is why hilus is going to be a very important structure in the kidney. तो किडनी का ये एक कॉन्केव मार्जिन है, इनर कॉन्केव मार्जिन. ये आउटर मार्जिन है, ये इनर मार्जिन. ठीक है, फिनिश्ड? Yes, sir. ओके, नाउ किडनीज का अगर फिर से पोजीशन थोड़ा सा देखना है ना, सो इफ वी टेक द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंटायर बॉडी, हमारे बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी में सारे ऑर्गन्स होते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन द पाउच लाइक स्ट्रक्चर नोन एज पेरिटोनियम. ओके, there is pouch like structure which is present in the abdominal cavity called as peritoneum, and all the organs are present inside the peritoneum. सारे organs ये पेरिटोनियम के अंदर है. Okay, except for the kidneys. Kidneys are present outside the peritoneum and behind the peritoneum, मतलब पीछे की तरफ.
तो किडनीज को अगर आपको चेक करना है ना तो आपको बैक रीजन, लोअर बैक रीजन, लंबार रीजन में आपको चेक करना पड़ेगा. यू वोंट बी एबल टू रिलेट किडनीज फ्रॉम फ्रंट. Okay, but they are definitely possible through the behind. So they are present where, if you take the cross section, so they are present outside the peritoneum on the posterior side. So we call this as retroperitoneal structures. तो अगर आप देखोगे तो ये पेरिटोनियम है जो मैंने पाउच लाइक स्ट्रक्चर बताया. ये स्टमक का सेक्शन है. दिस इज ऑल विसरल पेरिटोनियम. ठीक है, ये लीवर का सेक्शन है. अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया, बॉडी को, सपोज ये ह्यूमन बॉडी है ऐसा, ठीक है, इफ दिस इज द ह्यूमन बॉडी लाइक दिस, ओके, तो ये ह्यूमन बॉडी का मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया है और फिर आपको मैं ऊपर से ये दिखा रहा हूं. ओके, सो इफ यू टेक द क्रॉस सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन रादर, अगर आप लोगे तो इस तरीके से आपको ये दिखेगा. ओके, यस, लाइक अ सीटी स्कैन. परफेक्ट, राइट. सो दिस रीजन इज द पेरिटोनियम, और ये पेरिटोनियम के अंदर सारे ऑर्गन्स है इंक्लूडिंग लीवर, बट इट इज प्रेजेंट बिहाइंड. सो दिस इज एब्डोमिनल कैविटी एंड पेरिटोनियम इज प्रेजेंट, किडनीज आर प्रेजेंट बिहाइंड द पेरिटोनियम. टीएस ऑफ बॉडी इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बॉडी, एंटायर बॉडी का ट्रांसफर सेक्शन. अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था, इधर देखा नहीं कि आपने संजीवनी? सपोज ये ह्यूमन बॉडी है ऐसा, लाइक दिस, बराबर है. तो मैंने क्या किया, ऐसा सेक्शन लिया और फिर मैं आपको ये ह्यूमन बॉडी दिखा रहा हूं ऊपर से. संजीवनी समझा? हाँ, तो ये टीएस है. टीएस इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एब्डोमिनल सेक्शन. सो इफ यू सी, इट इज प्रेजेंट. नाउ दिस इज फ्रंट रीजन, ये हमारा वेंट्रल रीजन है, ये हमारा डॉर्सल रीजन है. क्यों? क्योंकि वर्टिब्रा पीछे है, मतलब ये बैक है. पोस्टीरियर, ये एंटीरियर रीजन है, सामने वाला एब्डोमिनल रीजन. ठीक है. सो एक मिनट, और एक मेंबर आ गया है. ओके, so kidneys are present outside the peritoneum and behind the peritoneum. Because they are present outside the peritoneum and coelom, so we call that as extracoelomic or extraperitoneal. Okay, these are known as extracoelomic or extraperitoneal structures. Yeah, and because it is present behind the peritoneum, इसके लिए उसको बोला गया है रेट्रोपेरिटोनियल. मैं ये फिर से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये मैंने क्या लिखा है. Either you call this as extracoelomic or you call this as extraperitoneal. Okay, so it can be called as extraperitoneal, and because it is present behind the peritoneum, इसके लिए उसको बोला गया है रेट्रोपेरिटोनियल. रेट्रो मतलब पीछे, behind. समझ में आया? So that is the position of this, and it is covered. कवरिंग इसका रहेगा तो सिर्फ एंटीरियरली रहता है बाय द पेरिटोनियम, क्योंकि पीछे से तो अटैच्ड है ना वॉल को. ठीक है. आई डोंट नो, मेरा अगर आपको सपोज ये माउस है मेरे हाथ में, तो अभी ये किडनी है. ठीक है, दिस वन, करेक्ट, ये किडनी है ऐसा समझ के चलो. नाउ दिस विल बी अटैच्ड टू द एब्डोमिनल कैविटी लाइक दिस. ये इधर अटैच्ड है, ये मेरा हाथ यानी मेरा एब्डोमिनल कैविटी है. मतलब ये जो रीजन है ना, दैट इज ओनली कवर्ड इन दिस. तो ये रीजन सिर्फ कवर्ड रहता है विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियम. समझ में आ रहा है? तो दिस रीजन ऑफ द किडनी, दिस रीजन ऑफ द किडनी इज अटैच्ड टू द एब्डोमिनल वॉल, और इसके ऊपर आएगा पेरिटोनियम का कवरिंग लाइक दिस. ओके, ऐसा पेरिटोनियम का पूरा कवरिंग आएगा लाइक दिस. समझ में आ रहा है सबको ये? हाँ, पीछे का ये पोस्टीरियर रीजन है ना, तो एब्डोमिनल वॉल को अटैच्ड है. हमारे पीछे जो एब्डोमिनल मसल्स है ना, उसको ये अटैच रहता है. ठीक है. सो दैट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द किडनीज. फाइन. नाउ फर्दर
आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द किडनी? फटाफट कर लेते हैं क्योंकि फंक्शंस अपने को पता ही है. सबसे पहला कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? सानिका वाड़िंबे को लास्ट स्लाइड चाहिए, ये वाला. Yes, sir. Done. Okay. Now, what are the functions of the kidney? तो सबसे पहला, the first function of the kidney is it maintains the homeostasis. मतलब जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, मेंटेन स्टेडी स्टेट इन द बॉडी, बैलेंस रहना चाहिए. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट like urea, uric acid will be released out. Third most important, adjustment of the sodium potassium chloride concentration, so that's called as osmoregulation. ठीक है, so maintenance of the water and salt balance. Then regulating the acid base balance, that is pH. ठीक है, by considering making isoionic condition, हाइड्रोजन आयन concentration को maintain करने का काम करता है. Okay, so to regulate the pH of the body, regulating the water and salt balance, this is known as osmoregulation. ठीक है, तो ये काम होगा, right? Then उसके बाद removing the foreign substances from the body, like for example drugs and pigments, अगर आते हैं हमारे बॉडी के अंदर तो उसको रिमूव करने का काम करेगा किडनीज. So these are all the different functions of the kidneys. ये अपने को पढ़ना ही है, आगे चल के वापस ये सारे रेफरेंसेस आने ही वाले हैं. ओके, चलो ये लिख लो. फिनिश्ड. Why मतलब that's a position of the adrenal gland as per the development ना. जैसा जैसा डेवलपमेंट होते गया वैसा वैसा उसका वो पोजीशन आया, और एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है एड्रेनालिन, है ना. और एड्रेनालिन का काम क्या होता है? increase the heart rate. करेक्ट. और कॉर्टेक्स का काम क्या होता है? कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होता है ना, उसको बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. Glucocorticoids and mineralocorticoids maintains the glucose and salt balance. तो इसके लिए they are indirectly connected to the kidneys also. और हमारा जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है ना, तो उसमें it develops from the common tissue of kidney as well as the gland. इसके लिए वो वहां पे homeostasis is maintenance of the steady state in the body. That's called as homeostasis. So हम क्या प्रॉब्लम है? सर वो जो सेकंड पॉइंट है ना, एडजस्टमेंट ऑफ आयंस कंसंट्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, इसके बीच का डिफरेंस नहीं समझा मुझे. सेम ही है वो. तो ऐसे दो सेपरेट पॉइंट क्यों बताए? हाँ, यानी वो पता नहीं क्यों लिखे, सेम ही है वो. ओके सर. हाँ लास्ट. अच्छा ये क्या है सर? इन फीमेल वाई वेट इज लेस देन इन मेल. जैसे सारे ऑर्गन्स का और स्ट्रक्चर्स का होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी ऑन एन एवरेज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट एक्स्ट्रा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द फीमेल्स, तो इसके लिए नेचुरली ऑर्गन का वेट और साइज थोड़ा कम हो जाता है फीमेल्स में, क्योंकि एब्डोमिनल रीजन पेल्विक रीजन से नजदीकी है ये सारे ऑर्गन्स. सर बट देन अमोनिया और यूरिक एसिड वगैरह का रिलीज सेम अमाउंट में रहता है ना दोनों जेंडर्स में? वजन बहुत ज्यादा कम नहीं है ना बेटा, 15 ग्राम का डिफरेंस है उससे. अब ये सारा काम कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है. नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स विल नॉट रिड्यूस.
सर अगर नेफ्रॉन सेम है तो साइज भी सेम होना चाहिए ना, तो वो कम कैसे हो गया फिर? मतलब मेल फीमेल में नेफ्रॉन्स का अमाउंट सेम है तो वो सेम जगह ऑक्यूपाई करेंगे ना। तो जैसे किडनी का साइज कम हो गया वैसे नेफ्रॉन्स का भी साइज कम ही होगा ना। हाँ तो बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से होता है वो। यस सर। ठीक है, मस्कुलेचर थोड़ा मेल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। तो नेचुरली एमिनो एसिड्स का डीअमाइनेशन रिक्वायर्ड विल बी मोर इन मेल्स देन इन फीमेल्स। तो वो थोड़ा सा कंपैरिजन है वो, इसके लिए देयर इज स्लाइट डिक्रीज इन द वेट। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है गौरव, कर सकते हैं। फीमेल का किडनी मेल को, मेल का किडनी फीमेल को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस हो गए। Now we need to understand one by one the entire structure. Now how is the blood supply? So blood supply will start from aorta through the renal artery. So renal artery comes out from which is a branch of the aorta, dorsal aorta. तो वहां से ये आता है and then it enters inside the kidney. So when the artery enters inside the kidney, it starts dividing into many small arterioles. So it enters through the hilus, and when it enters through the hilus, this renal artery divides into many small arterioles, and arterioles will further divide to form capillaries. Now these capillaries are given special name. Okay, ये capillaries को एक अलग से नाम दिया गया है, and that name is glomerulus or glomerular capillaries. So there are capillaries present inside the Bowman's capsule, which is a part of the nephron. There are capillaries which are present around the nephron. So peritubular capillaries and glomerulus. तो ऐसे बहुत सारे capillaries बनना चालू हो जाएंगे. All these capillaries will rejoin. So now these capillaries will carry the blood to the important functional unit. That functional unit is known as the nephron. ठीक है, तो ये सारा ब्लड किधर जाएगा? नेफ्रॉन्स तक. नाउ फ्रॉम हियर द नेफ्रॉन विल हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड. तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होगा. सो व्हाट रिमेन्स बिहाइंड, जैसे यहाँ पे बताया कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड कैपिलरीज विच आर प्रेजेंट अराउंड द ट्यूब, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिटिबुलर कैपिलरीज. So they will carry this blood, मतलब ये सारे capillaries rejoin करके क्या बनाएंगे? They will form the venule. Venule will form the renal vein, and renal vein will join to the vena cava, inferior vena cava, and then this inferior vena cava carries this blood to the heart. तो ऐसा ये पूरा नेटवर्क रहेगा. ओके, सो अगर मैं ये पूरा नेटवर्क अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे रहेगा आपका डॉर्सल एओर्टा. डॉर्सल एओर्टा से डिवाइड होके बन गया रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी ने डिवाइड करके बनाया आर्टेरियोल. ओके, आर्टेरियोल विल डिवाइड टू फॉर्म द कैपिलरीज इन द ग्लोमेरुलस, राइट. तो जैसे यहाँ पे जो आर्टेरियोल बना है, इफ आई हैव टू राइट हियर, सो दिस इज नोन एज एफरेंट आर्टेरियोल. ओके, और यहां पे ये जो बना हुआ है दिस इज नोन एज इफरेंट आर्टेरियोल. अभी इफरेंट आर्टेरियोल फिर से क्या बनाएगा? इफरेंट आर्टेरियोल विल स्टार्ट फॉर्मिंग दिस कैपिलरी नेटवर्क. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वी कॉल दिस एज पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज. पेरिटिबुलर कैपिलरीज मतलब द कैपिलरीज प्रेजेंट अराउंड द टिब्यूल, इसके लिए पेरिटिबुलर कैपिलरीज. सारे पेरिटिबुलर कैपिलरीज रीजॉइन होके क्या बनाएंगे? दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द रीनल वेन्यूल, एंड रीनल वेन्यूल विल जॉइन टू फॉर्म द रीनल वेन. रीनल वेन इज गोइंग टू जॉइन टू द इंफीरियर वेना कावा. तो ऐसा ये पूरा ब्लड सप्लाई है. समझा क्या सबको मैंने क्या बताया अभी? यस सर. थोड़ा थोड़ा समझा ना, आगे चल के और अच्छे से समझेगा. कुछ एडिशनल लेबलिंग मैंने यहाँ पे किया जो इधर नहीं था. हाँ, सो हाउ टू राइट दिस, वेरी गुड. तो इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझे.
तो मैं ना यहाँ पे लिख देता हूं. ओके, सो इट ऑल स्टार्ट्स विद द फ्रॉम द हार्ट. ओके, हार्ट से एक स्ट्रक्चर आएगा. सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एओर्टा, डोर्सल एओर्टा. Dorsal aorta will divide to form renal artery. Okay, renal artery will give rise to afferent arteriole. Afferent arterioles will start forming the glomerulus. Okay, glomerulus is the capillary network. ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क से आएगा बाहर फिर से आर्टरी, तो उसको नाम दिया है इफरेंट आर्टेरियोल. इफरेंट आर्टेरियोल फिर से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, ये फिर से डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड होने के बाद फिर ये क्या बनाना चालू करेगा? दिस विल फॉर्म पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज. पेरीटिबुलर कैपिलरी नेटवर्क विल स्टार्ट जॉइनिंग. ये रीजॉइन होके क्या बनाएगा? ये रीजॉइन होके बनाएगा रीनल आर्टेरियोल. Renal arteriole will join to form what? It will join to form the renal vein. And renal vein is going to join to whom? Renal vein will join to, yes, to inferior vena cava. inferior vena cava, and inferior vena cava will carry this blood again to the heart. ऐसा. ठीक है संजीवनी, ऐसा लिखो. सर इसके बाद लास्ट स्लाइड भी दिखा देना. हाँ हाँ. ओके, ग्लोमेरुलस के बाद लिखा है इफरेंट आर्टेरियोल. EFFERENTARTERIOL. डन. बायो सर. सबका हो गया लिख के? Yes, sir. Yes, sir, done. हाँ, कौन सा स्लाइड चाहिए था? ये वाला. यस सर, डन सर. दिया हो गया. दिया. So will you please show the Yes, next sir. slide once again? Which slide बेटा? So that heart, aorta, renal artery wali slide. हाँ, ये वाला. Yes, sir. Just a minute. Done, sir. ओके, चलो तो ये तो हो गया हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी. ओके, अभी थोड़ा सेक्शन ले लेते हैं किडनी का. अभी किडनी को पूरा बाहर से तो अंडरस्टैंड कर लिया. नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड किडनीज फ्रॉम इनसाइड. सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द किडनी. तो किडनी को अगर हम लोग सेक्शन लेते इसका, तो हाउ डज इट अपीयर? ठीक है, सो किडनी फ्रॉम आउटसाइड विल बी कवर्ड बाय a capsule, so that is known as the renal capsule. और उसके ऊपर एक टिश्यू आता है. Now this capsule is made up of collagen fibers. उसके ऊपर और एक आता है, और एक टिश्यू आता है, that is known as the renal fascia. ठीक है, it is called as the renal fascia.
Renal fascia is basically a type of adipose tissue. तो ये बनता है adipose tissue. Okay, तो उससे बनता है plus it is also made up of the fibrous connective tissue. तो दोनों से बनता है ये renal fascia. मतलब इसको adipose tissue का मतलब fat tissue का भी लेयर रहेगा और प्लस कोलेजन फाइबर्स का भी लेयर रहेगा एंड प्लस पेरिटोनियम भी है, तो पूरा सरफेस कवर्ड रहेगा. रीनल ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज रीनल फेशिया अदर देन रीनल कैप्सूल. एक कवरिंग रीनल कैप्सूल, फिर इसके ऊपर और एक कवरिंग रीनल फेशिया जो बनता है एडिपोज टिश्यू प्लस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दोनों से बनता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. यस, आउटर लेयर. ठीक है, फाइन. सो दिस इज द कवरिंग. ठीक है. नाउ इफ वी एंटर इनसाइड द किडनी, अंदर अगर हम लोग जाएंगे, सो इफ वी टेक द लेंथ वाइज सेक्शन, सो दिस इज हाउ द किडनीज विल लुक लाइक. सो दिस इज कॉल्ड एज द longitudinal section. Okay, so if we take the longitudinal section of the kidney, what are the different parts and structures? अभी इसमें से कुछ आप लोगों को पता रहेंगे क्योंकि आप लोगों ने 10th में ये पढ़ा हुआ है. आई नो उसको बहुत साल हो गए, पुरानी बात है, बचपन की बात है, बट स्टिल. ओके, नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम लोग किडनी का पढ़ते हैं ना, तो देयर आर वेरियस स्ट्रक्चर्स व्हिच वी ऑब्जर्व. So the entire kidney tissue is divided into two parts. इसके दो मेजर पार्ट्स आते हैं. कौन कौन से? सबसे पहला आता है आउटर कॉर्टेक्स रीजन. So outer part is called as the cortex and the middle portion is known as the medulla. Okay, so ये जो pyramidal shape, triangular shape जो structure होता है ना, that's called as the medulla. कौन सा स्लाइड चाहिए संजीवनी? लास्ट स्लाइड है, कौन सा स्लाइड संजीवनी? ये दिस इज रीनल कैप्सूल और बाद में मैंने रीनल फेशिया ऐसे लिखा था, वो मैंने निकाल दिया अभी. डन. एक काम करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं प्लीज, चलेगा? थोड़ा मेरा थ्रोट का पता नहीं क्या हो गया. टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. इट्स कितना बजा है अभी? 5:50 हुआ है. 5:55 को मिलता है. $17.55. Take a break. चालू करते हैं, मैंने ये बोला. यस सर. हाँ, 7 मिनट लेट हो गया. आई नो. गिनो गिनो, मेरा टाइम गिनो, गधे दो. चलो. Outer part is known as the cortex and the middle part is called as the medulla. अच्छा, medulla is basically a triangular shaped or it is pyramidal shaped. Okay, so medulla is also known as the renal pyramid. Okay, the other name for this is the renal pyramid because it appears like a pyramid. अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है. ठीक है, like this. So it appears like that, therefore it's called as a pyramid, renal pyramid. Renal matlab kidney, right? Now cortex, if you observe, cortex will be seen in the form of, or rather cortex will be seen as granular structure. अब ऐसे छोटे छोटे granules दिखते हैं इसके अंदर. Now what are these granules? These granules are nothing but the part of the nephron. Nephron is the functional unit of the kidney.
सो नेफ्रॉन का ना ये जो ऊपर वाला जो रीजन होता है लाइक दिस, इफ यू नो दिस रीजन, सो दिस इज नोन एज द बॉमन्स कैप्सूल, और ये बॉमन्स कैप्सूल के अंदर होता है एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल एंड अलोंग विद दैट देयर इज ग्लोमेरुलस। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्स दिस स्मॉल 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 ग्रैन्यूल्स। तो ऐसे ही यानी Bowman's capsule will appear like a dotted spot or rather spotted structure. So these small spots which are present on the cortex are nothing but the presence of Bowman's capsule along with the glomerulus, right? ठीक है, so इस तरीके से cortex का region दिखेगा आपको, so it appears granular in nature like this, whereas the medulla will appear in the form of striations. तो ऐसे स्ट्राइशंस की तरह ये मेडुला आपको दिखेगा, लाइक स्ट्राइशंस मतलब पट्टियां, करेक्ट? तो ऐसे छोटे 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 ऐसे बहुत सारे स्ट्राइशंस इसको आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी ये कहाँ से आता है? सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर नेफ्रॉन कॉल्ड एज अ कलेक्टिंग डक्ट। तो all these collecting ducts will be present here in this region and they are going to form the striations. So that is the appearance of the kidney from inside. Have you understood this? Yes, sir. Good. Now, the pyramids basically are formed around the hilus. Hilus के आजू बाजू में रहता है, and the approximate number is 6 to 20. ठीक है, so they are present in the middle region and the number is going to be 6 to 20. So medulla is in the form of pyramids which can range in humans from 6 to 20 in number. In this particular range the medulla triangular shaped structures are present and each pyramid, हर एक pyramid triangular है, pyramid है तो pyramid की तरह दिखेगा, naturally it's going to have the base and the apex, but if you see apex is directed towards the hilum whereas base is directed towards the cortex. तो थोड़ा सा वो ध्यान में रखो, एपेक्स नीचे है, बेस ऊपर है, उल्टा है, ठीक है? पोजीशन ऑफ द एपेक्स एंड बेस इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? सो एपेक्स ऑफ द पिरामिड इज हियर इज नोन एज द पैपिला, उसको हम लोग बोलते हैं पैपिला। कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए इशिता? ये this one, इशिता हो गया? चलो, now as I said each pyramid will have the apex and the base and the apex of the pyramid contains the papilla or it is called as the papilla and papilla will have many small ducts. So these ducts are called as ducts of Bellini. ठीक है, तो छोटे छोटे डक्ट्स इसके अंदर आते हैं, डक्ट्स मतलब ट्यूब्स, पाइपलाइन। सो दीज आर ऑल नोन एज द डक्ट्स ऑफ बेलिनी विच आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द पिरामिड और द एपेक्स ऑफ द पिरामिड नोन एज पैपिला। यहां तक ठीक? स्ट्रक्चर में मैं डायग्राम में निकाल रहा हूं तो वो थोड़ा सा, नो दे विल नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम हाइलम, दे आर द पार्ट ऑफ द पिरामिड जो हाइलम की तरफ जा रहा है, हाइलस की तरफ। क्योंकि अगर आप येलो, हाँ एपेक्स टिप, अगर आप ये येलो कलर देखते हो ना तो दैट इज एक्चुअली द रीजन दैट्स कॉल्ड एज पेल्विस, रीनल पेल्विस बोलते हैं उसको, ठीक है? सो दैट कैरीज यूरिन। हो गया ये? फाइन। सो दिस आर द डक्ट्स ऑफ बेलिनी। नाउ ऑल दीज डक्ट्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये एक रीजन है छोटा सा, so these ducts will come out from the papilla. Papilla से ये ducts बाहर आएंगे and they are going to form a small pipeline or tube like structure here. This small tube like structure which I have drawn here is known as the minor calyx. Okay, so it's a small branch जो अभी मैंने blue color का निकाला है, that's called as the minor calyx. And all these minor calyx will join, ये सारे minor calyces will join here. And when they join, they are going to form a structure known as major calyx. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दो से एक major calyx बन गया, इधर एक ऐसा major calyx बन रहा है। If you see here, these two are joining or all these three are joining to form the major calyx, right? तो ये बड़े बड़े ट्यूब, ये वाला ट्यूब, ये वाला ट्यूब, this one, so these are called as the major calyx.
What is not attached to the Aman apex? Ducts of Bellini are attached to the calyx is attached to the apex, na? Continue हो रहा है ना? So here we have a pyramid like this, one pyramid. Okay. Here we have another pyramid like this. ठीक है? ये pyramid का ये minor calyx, ये pyramid का ये minor calyx, ये दोनों minor calyxes join होके इन्होंने क्या बना दिया? Major calyx. समझा? समझा? Good. So ये बन गया आपका major calyx, and major calyx now opens as a large cavity called as renal pelvis. Renal pelvis then comes out from the kidney as ureter. तो kidney से ये बाहर आएगा as ureter. So this is how the entire structure, यानी medulla का continuation इस तरीके से होगा. सबको समझ रहा है? Hello. Yes, sir. Confusion sir. please पूछ लो. ठीक है? And then ureter continues with the urinary bladder, and then it continues with the urethra. Right? So ऐसा ये पूरा structure रहेगा kidney का. Okay? So now that was kidney from inside and the structures outside up to urethra. ठीक है? अभी बाहर का region आता है. So that's called as the renal. क्या बोलते हैं उसको? बाहर के region को? अंदर का मेडुला है तो बाहर का क्या है? कॉर्टेक्स. वेरी गुड. सो इट्स कॉल्ड एज द रीनल कॉर्टेक्स. नाउ रीनल कॉर्टेक्स, सो इन सर्टेन रीजन्स पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स कंटिन्यूज इन मेडुला. अगर आप देखोगे तो ये ट्यूब जो दिख रहे हैं ना, ये मेडुला के अंदर जा रहे हैं, ऐसे अंदर जा रहे हैं, ऐसे अंदर जा रहे हैं, ऐसे मेडुला को कंटिन्यू कर रहे हैं लाइक दिस. ठीक है? So the part of the cortex which continues in medulla is known as columns of Bertini. Okay, so this is known as columns of Bertini, right? And these are supportive in nature. मतलब ये cortex को support करते हैं. So let's see how this particular urine will be seen. Now urine which is formed here in the nephron. यहाँ पे nephron में cortex में जो urine बन रहा है, सर मतलब रुको जरा, ये ध्यान दो इधर. Okay, so urine which is formed here, if you see here. If you see here कि यहाँ पे this region, this is known as, ये वाला जो, हाँ बंद किया मैंने आवाज, नहीं मेरे सामने कोई बैठा था. So this region अगर आप देखोगे तो ये पूरा medullary region है. Can you see this now? ये जो है ना, इन्होंने क्या बना दिया? Ducts of Bellini. Ducts of Bellini are opening here. तो इधर बन गया आपका minor calyx. Okay, ये दूसरे किसी पिरामिड का माइनर कैलिक्स, और ये सब मिलकर बन गया मेजर कैलिक्स लाइक दिस. ओके, सो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा. सो दीज आर द कलेक्टिंग टिब्यूल्स एंड दीज आर द कलेक्टिंग डक्ट्स, एंड कलेक्टिंग डक्ट्स विल ओपन एज डक्ट्स ऑफ बेलिनी. ओके, सो ऑल द कलेक्टिंग डक्ट्स विल ओपन एज डक्ट्स ऑफ बेलिनी. सो यूरिन बनेगा किधर? Urine will be formed here in the nephron. Nephron से इस तरीके से carry होगा. Collecting tubule will collect the urine. Collecting tubules will join to the collecting duct, and collecting duct will open outside as ducts of Bellini. ठीक है? So इस तरीके से ये पूरा flow रहेगा, outflow of the urine. समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक है? So ये nephron है. Right? So there are 7 to 8 collecting ducts. They all will join to form the ducts of Bellini. Ducts of Bellini will open in the minor calyx. Minor calyx will open as major calyx. Major calyx will continue to form renal pelvis. Renal pelvis continue and comes out from the kidney as ureter, and ureter is going to join to the urinary bladder and thus to the urethra, and thus the urine will be thrown outside. तो urine आ जाएगा बाहर. ठीक है? So this is how the entire structure of the kidney. Okay? ये पूरा स्ट्रक्चर अभी बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किडनी का. इसका और भी आगे एक छोटा सा पार्ट आएगा, that we need to study. Fine? सबने सब लिखा है, कुछ नोट्स बनाए, क्या किया है?
आप लोग क्या करो ना, इसके सारे नोट्स है ना, इसके सारे नोट्स है ना, आप ये वीडियो देख के बना लो, ठीक है? दैट विल बी बेटर, क्योंकि फ्लो में मैंने पूरा पढ़ा दिया है, तो वीडियोस में देखकर आप ये बना लो। अच्छा, आज अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, 15 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है? एंजॉय करो, हैव अ ब्लास्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, Thank you, sir. Bye, sir. Good night. बाय बाय, Bye, sir. बाय बाय, Bye, sir. बॉय बॉय। एक मिनट चलो।